السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ہم شکل جنزادہ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ کافی دیر سے سویا تھا، گہری نیند آئی، لیکن صبح پوری طرح نہ ہونے پائی تھی کہ کسی نے میرے اوپر چھلانگ لگائی اور دبوچ لیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے اوپر سوار بلا کو دیکھا، وہ طالوت تھا۔ اس نے جھک کر میرے کئی بوسے لے ڈالے اور میں بامشکل اسے خود پر سے دھکیل سکا۔ کیا بدتمیزی ہے، کیوں بدحواس ہو رہے ہو؟ مانگ لے میرے یار، جو دل چاہے مانگ لے، میں سب کچھ بخشنے کو تیار ہوں، طالوت نے مسرور لہجے میں کہا۔ کیوں چیخ رہے ہو طالوت؟ یہ کیا وحشت ہے؟ ہوش میں آؤ۔ ہوش کہاں میری جان، یہ رات، اس رات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کاش وہ ہرجائی نہ ہوتی تو ہم اسے اپنے ساتھ شامل کر لیتے۔ اچھا بکواس بند کرو، اسے تمہارے اوپر شبہ تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، لیکن مجھے شبہ ہونے لگا تھا، طالوت نے میرے قریب دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا شبہ ہونے لگا تھا؟ یہی کہ وہ عورت نما مرد ہے اور میں مرد نما عورت۔ یقین کرو، بڑی جذباتی اور بے حیا عورت ہے، ہر بات میں پہل کرتی ہے۔ طالوت نے آنکھیں بند کر لیں۔ سو رہی ہے کیا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ بڑی مشکل سے اسے سلانے میں کامیاب ہوا ہوں، طالوت نے کہا۔ اس کے لیے مجھے اپنی پراسرار قوت سے کام لینا پڑا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ زرینہ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے سے ملحقہ غسل خانے میں غسل کیا۔ جب میں غسل خانے سے باہر آیا تو وہ جاگ چکی تھی اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹ پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیر لی۔ کیا دیکھ رہی ہو سویٹی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے گہری سانس لی۔ رات کو تم کچھ بدلے لگ رہے تھے، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو پہلے تھے۔ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، میں نے جلدی سے کہا، اور وہ دلکش انداز میں مسکرانے لگی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا خوب کس کر اس کے منہ پر تمانچے ماروں، لیکن میں نے بامشکل خود پر قابو پا لیا۔ عارف، وہ خمار آلود لہجے میں بولی۔ ہوں؟ ابھی کیوں جاگ گئے؟ صبح اتنی جلدی کیوں ہو گئی؟ وہ بہکی ہوئی آواز میں بولی۔ کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہوتی۔ اٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا۔ رات کو تو ختم ہونا ہی تھا، چھوڑو، رات گئی بات گئی۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اس نے کہا۔ تو پھر ناشتہ کرو۔ نہیں۔ کیوں؟ میں تمہارا ناشتہ کروں گی، اس نے کچھ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اٹھو، شاید کوئی آیا ہے، برابر والے فلیٹ میں کوئی آیا ہے، ہمارے یہاں کون اتنی صبح آ سکتا ہے، اس نے مخمور لہجے میں کہا اور اٹھ کر مسحری پر بیٹھ گئی۔ یہاں آ جاؤ ڈارلنگ، اس نے کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بے بس ہو گیا۔ میں روشنی کی اس کرن کو بھی نہیں دیکھ سکا جو بند دروازے سے رینگ آئی تھی، اور پھر میری نگاہ دروازے پر پڑی تو میں چونک اٹھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوئی دروازے میں کھڑا تھا۔ میں دروازے میں موجود شخص کو دیکھنے لگا اور پھر اسے پہچاننے میں مجھے دقت نہ ہوئی، وہ اختر بیگ تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بوکھلا گیا، تب زرینہ کی نگاہ بھی اختر بیگ پر پڑی۔ خود اس کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گئی اور غسیلی نگاہوں سے اختر بیگ کو دیکھنے لگی۔ مجھ پر اپنی محبت کا سکہ بٹھانے کا ایک موقع اسے مل گیا تھا، لیکن اب اختر بیگ بھی مجھے پہچان گیا تھا، چنانچہ اس کا تمام غصہ حیرت میں بدل گیا تھا۔ تم عارف، اس کے منہ سے نکلا اور میرے اندر ایک عجیب جرأت ابھر آئی۔ میں نے حواس مجتمع کیے اور مسکرانے لگا۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں، اختر بیگ۔ کیوں؟ تمہیں حیرت کیوں ہوئی؟ کیا میں زرینہ سے اظہار التفات نہیں کر سکتا؟ میں کہتی ہوں تم بلا اجازت اندر کیسے آئی؟ دروازہ کس نے کھولا؟ زرینہ کان پھاڑ آواز میں چیخ اٹھی۔ ٹھہرو زرینہ، اختر بیگ میرا پرانا دوست ہے، مجھے اس سے مل تو لینے دو، میں نے اسے روکا۔ تو تم یہاں چھپے ہوئے ہو؟ اختر بیگ نے کہا۔ ہاں میری جان، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ کیا تم میرے اور زرینہ کے درمیان قائم تعلقات سے واقف نہیں تھے؟ میں نے طنزی انداز میں کہا۔ لیکن اس نے تم سے نگاہیں پھیر لی تھیں، شاید تم بھی اس بات سے واقف ہو، اختر بیگ نے کہا۔ ہاں، زرینہ نے کامیابی سے تمہیں بے وقوف بنایا اختر بیگ۔ ہم دونوں نے مل کر تمہارے ساتھ ایک دلچسپ مذاق کیا تھا۔ زرینہ صرف میری ہے، ہمیشہ سے میری ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں زرینہ؟ بالکل نہیں ڈارلنگ، تم 16 آنے سے ہی کہہ رہے ہو، یہ اختر بیگ گدھا ہے، زرینہ نے نفرت سے کہا اور میں نے ایک کہکہا لگایا۔ یہ ہمارا مشترکہ پروگرام تھا اختر بیگ، زرینہ تمہیں بیوقوف بناتی رہی اور تم نے اسی گدھے پن میں شادی کے کارڈ چھپوا لیے۔ پھر تمہاری اس حماقت سے خوش اسلوبی سے نمٹنے کے لیے میں نے رقم غائب کرنے کا ڈرامہ کیا، حالانکہ مجھے اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں کوئی معمولی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں، معاف کرنا اختر بیگ، ہماری تفریحات اسی قسم کی ہوتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اختر بیگ کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔
तो इस सुअर की बच्ची ने मुझे इतना ज़बरदस्त धोखा दिया है, मैं इसे जान से मार दूंगा। अख्तर बेग जरीना की तरफ झपटा, लेकिन दरमियान में ही मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। किसकी मजाल है कि मेरी मौजूदगी में मेरी महबूबा को हाथ लगा सके। छोड़ो छोड़ो मुझे, अख्तर बेग ने मुझसे गिरेबान छुड़ाते हुए कहा, लेकिन मेरे एक जोरदार थप्पड़ ने उसके हवास दुरुस्त कर दिए। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर डाका डालते हुए शर्म नहीं आई थी अख्तर बेग, जबकि तुम्हें मालूम था कि मैं जरीना से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, मैंने इस पर हजारों रुपए खर्च किए हैं, मैं अपनी कमाई इस पर लुटाता रहा हूँ, चुनांचे ये किसी सूरत में तुम्हारी नहीं हो सकती। ये तुम्हारी हमाकत थी, जरीना की नहीं। जरीना, इसके तमाम तहाइफ वापस कर दो। मैंने कहा, मैं इसके फटीचर तोहफों को जूते की नोक पर मारती हूँ। जरीना ने कहा और फिर उसने एक अलमारी से जेवरात के डब्बे, साड़ियाँ और दूसरे कपड़े निकालकर फेंकना शुरू कर दिए। उठाओ, इन्हें उठाओ अख्तर बेग, और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। तुम बिला इजाज़त हमारी खलवत में दाखिल हुए हो, मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मेरा तन्नतोष अख्तर बेग के मुकाबले में बहुत अच्छा था, और फिर मेरे ज़ोरदार थप्पड़ ने भी अख्तर बेग के हवास दुरुस्त कर दिए थे। इसलिए अख्तर बेग ने सामान उठाकर फरार हो जाने में ही आफियत समझी। जरीना उसके पीछे पीछे बाहर निकली और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मालून ने तमाम मूड चौपट कर दिया। मगर दरवाज़ा किसने खोला? वो ताज्जुब से बोली, मुमकिन है तुम रात को बंद करना भूल गई हो। मैंने कहा, लेकिन मेरे जहन में तालूत घूम रहा था, ना जाने वो बदमाश कहाँ है। दरवाज़ा उसके अलावा कौन खोल सकता था? मेरा ख्याल है मैंने बंद कर दिया था। बहरहाल अच्छा हुआ, उस मूजी से जान छूट गई। लेकिन तुमने बात भी खूब बनाई, कैसा मुंह फाड़ कर रह गया था। ना जाने खुद को क्या समझ रहा था, जलील कहीं का। ये सुबह सुबह कैसे आ गया था? मैंने पूछा। बस परसों मैंने टाल दिया था, कल ऑफिस नहीं गई तो आज आदम का। जरीना ने कहा, अब तुम उस नौकरी पर लानत भेजो। मैंने मशवरा दिया, मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वैसे भी वहाँ नौकरी करना मुश्किल है। हशमत सेठ अख्तर बेग को बहुत मानता है, और फिर तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है, अब मुझे मुलाजमत करने की ज़रूरत भी क्या है। उसने मेरे सीने पर सर रखते हुए कहा, ठीक है, मगर अब नाश्ते का बंदोबस्त तो कर दो, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है, जोड़ जोड़ दुख रहा है। जरीना ने एक अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं गुस्ल कर सकती हूँ। कर लो, मैं दूसरे कमरे में बैठा हूँ। मैंने कहा और फिर वो बाथरूम में चली गई तो मैं जल्दी से बाहर निकल आया। तालूत, मैंने दांत भींचकर आवाज़ दी। जाने तालूत। मेरे कान के नज़दीक ही आवाज़ सुनाई दी और तालूत नमूदार हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट थी। तो मेरा ख्याल दुरुस्त था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, कौन सा ख्याल? वो बेनियाजी से बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। कॉल बेल बजने पर दरवाज़ा तुमने ही खोला था? हाँ, मेहमान को अंदर आने से रोकना बदअखलाकी जो है। और फिर जब मैंने देखा कि वो अख्तर बेग है तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं तुम दोनों का टकराव का दिलचस्प तमाशा देखूं। इसका नतीजा जानते हो? देख तो लिया। अभी कहाँ, अभी तो देखोगे। वो बदबख्त पुलिस लेकर आ गया तो क्या होगा? तालूत ने लापरवाही से शाने उचका दिए। ओह, तुम नहीं जानते तालूत, हमें इन झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने हथेली पर घौंसा मारते हुए कहा, लेकिन मैं इन तमाम तफरीहात से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ। तुम इस किस्म के मामलात मुझ पर छोड़ दिया करो। तालूत ने कहा और मैंने गुस्से से आंखें बंद कर लीं। छोड़ो इन बातों को मेरी जान, आओ कमरे में चलें। तालूत ने कहा और मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ पड़ गया। मैंने कुर्सी पर गिरकर आंखें बंद कर लीं और तालूत ग्रामोफोन की तरफ बढ़ गया। ये क्या है? उसने रिकॉर्डर को उठाकर देखते हुए कहा। फजूलियात। मैंने आंखें बंद किए कहा और तालूत ग्रामोफोन में उलट पलट करता रहा। किसी न किसी तरह उसने उसे ऑन कर लिया और रिकॉर्ड से एक नगमा फूट पड़ा। मैंने तालूत को उछलकर एक तरफ पलटते देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। फिर उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखने लगा। मुझे उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई थी। अच्छी चीज़ है, उसने चंद मिनट के बाद मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो एक के बाद दूसरा रिकॉर्ड बजाता रहा और मैं कुर्सी पर आंखें बंद किए पड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद जरीना की आवाज़ सुनाई दी, आरिफ आ जाओ। डार्लिंग, नाश्ता तैयार है, बस बंद करो। मैंने उठते हुए कहा, नाश्ता तैयार हो गया है, तुम जाओ। नाश्ता मेरे लिए थोड़ी तैयार हुआ है। तालूत ने कहा, बस हम आज ही यहाँ से चल देंगे। मैं अब ज़्यादा फजूलियात बर्दाश्त नहीं कर सकता। भला ये भी कोई बात है? मैं तुम्हारे साथ नाश्ता भी नहीं कर सकता। जाओ जाओ, बुला रही है। तालूत ने मेरी गर्दन पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेल दिया और फिर खुद ग्रामोफोन बंद करने लगा। जरीना इसी तरफ आ रही थी। गुस्ल करने के बाद वो निखरी निखरी नजर आ रही थी। थोड़ी देर कबल के वाकयात का कोई असर उसके चेहरे पर नहीं था। मैंने उस बदजात औरत की शक्ल देखी। अपनी मोहब्बत के धारे तब्दील कर देना इस औरत के लिए किस कदर आसान है। गरीब अख्तर बेग लुट गया, उसकी दुनिया बर्बाद हो गई, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं है।
مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں بھی اس کی وجہ سے سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ میرا دل چاہا کہ زرینہ کا چہرہ بگاڑ دوں، لیکن بہرحال مجھے کیا پڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد خود ہی اس کا طلسم ٹوٹ جانے والا تھا۔ میں اس کے ساتھ ناشتے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ میری خاطر مدارت کرنے لگی، لیکن میں زندگی کے کسی حصے میں اس مکار عورت کی طرف سے دل صاف نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال ہم ناشتہ کرتے رہے، اور ابھی ناشتے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر زوردار دھڑ دھڑاہٹ سنائی دی۔ میرے ساتھ زرینہ بھی چونک پڑی۔ کون بدتمیز ہے، وہ بولی اور ناشتے کی میز سے اٹھ گئی۔ میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، پولیس، اور میرا یہ خیال 100% درست تھا۔ چند لمحے بعد ایک پولیس افسر پستول تانے ہوئے ناشتے کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 کانسٹیبل زرینہ کے بازو پکڑے ہوئے تھے، اور زرینہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پولیس کو دیکھ کر میرا بھی بدن کانپنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں طالوت کی تسلیاں بھول گیا۔ میں نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ ہتھکڑیاں ڈال دو اس بدماش کو، خرانٹ پولیس آفیسر نے کہا، اور پھر زرینہ کی طرف دیکھ کر بولا، اور کون ہے یہاں؟ کوئی نہیں، میری بوڑھی ماں تھی جو ایک رشتہ دار کے یہاں چلی گئی ہے، زرینہ نے جواب دیا۔ ہاں، تاکہ تم خوب رنگرلیاں منا سکو۔ تم نے ایک خطرناک مجرم کو پناہ دی ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اب جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود مجھے جرم پر اکسانے والی یہی عورت ہے انسپکٹر، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ دونوں کو دیکھ لیا جائے گا، انسپکٹر نے کہا، اور زرینہ کی خوف و حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اپنے گرفتار ہونے کا خوف میرے دل سے جاتا رہا۔ میں زرینہ کی زندگی برباد کر چکا تھا، میرا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ یہ میری زندگی کے حسین ترین لمحات تھے۔ یہ ایک بہت بڑے نواب کا بیٹا ہے انسپکٹر، تم زرینہ کے منہ سے نکلا، اور تم اس نواب کی بہو بیگم ہو، کیوں؟ انسپکٹر نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اتنی دیر میں سپاہی میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال چکے تھے، پھر وہ مجھے لیے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہاں میں نے اختر بیگ کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے انتقام کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اختر بیگ، میں اس تھپڑ کی بھی معافی چاہتا ہوں جو میں نے تمہارے گال پر لگایا تھا۔ اصل میں تمہیں اس عورت کی اصلیت دکھانا چاہتا تھا جس نے میری زندگی برباد کی ہے، میں نے اختر بیگ سے کہا۔ لے چلو اس عورت کو، انسپکٹر نے کہا، اور سپاہی زرینہ کو گھسیٹنے لگے جو میرے الفاظ پر نیم مردہ سی ہو گئی تھی۔ پھر ہم دونوں کو پولیس کی بند گاڑی میں بٹھایا گیا۔ زرینہ کے تمام پڑوسی جمع ہو گئے تھے اور اس کے بارے میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ آوارہ تھی، الو کی پٹھی، ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا۔ اپنے آشنا کے ساتھ پکڑی گئی، بہت سی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑی، اور پھر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ زرینہ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی اور بار بار پھٹی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس سے اتنا زبردست انتقام لیا ہے۔ اب وہ کہیں کی نہیں رہی تھی، شاید ملازمت سے بھی نکال دی جائے گی۔ پولیس کے شکنجے سے تو خیر بآسانی نکل سکتی تھی، کیونکہ اس نے کوئی سنگین جرم نہیں کیا تھا، لیکن فلیٹ کے قرب و جوار کے لوگ اب اسے اس فلیٹ میں نہ رہنے دیں گے، اور اختر بیگ، وہ تو شاید اس کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ ٹھیک ہے ہی اس قابل، میں نے نفرت سے سوچا۔ کمینی، ذلیل، بدذات کہیں کی۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کی عمارت میں پہنچ کر رک گئی، اور ہم دونوں کو نیچے اتارا گیا۔ پھر زرینہ کو تو کہیں اور لے جایا گیا، اور مجھے ڈی ایس پی کے آفس میں پہنچا دیا گیا۔ انسپکٹر نے ڈی ایس پی کو میرے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ خوب، تو یہ حضرت پکڑے ہی گئے۔ سنا ہے انہوں نے اس شہر میں تو بڑے کارنامے دکھائے تھے جہاں انہیں رقم سمیت پکڑا گیا تھا۔ اب یہی اس آدمی کے بارے میں بھی بتا سکیں گے جس نے پولیس کے سامنے خود کو ایک تاجر ظاہر کیا تھا اور جو ان کا ہمشکل تھا۔ ڈی ایس پی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر انسپکٹر کی طرف رخ کر کے بولا، فی الحال اسے لاک اپ میں بند کر کے خصوصی گارڈ لگا دو، اس کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، البتہ زرینہ کی شکل رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ متضاد کیفیات تھی میرے دل میں، کبھی اس کی بے بسی پر رحم کے جذبات بھی ابھرنے لگتے تھے، کبھی اس پر غصہ آنے لگتا تھا، لیکن میں نے رحم کے جذبات کو سختی سے دبا دیا۔ وہ بے وفا اسی قابل تھی، وہ صرف ایک زرپرست عورت ہے جس کی نگاہ میں عزت و عصمت کی کوئی اہمیت نہیں۔ کوئی بھی نوجوان اس کے لیے اختر بیگ یا عارف ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوں۔ پورا دن لاک اپ میں گزر گیا۔ شام کو 5 بجے ڈی ایس پی کے دفتر لے جایا گیا۔ یہاں بہت سے پولیس افسر موجود تھے۔ ڈی ایس پی نے میرے ساتھ بڑا نرم سلوک کیا، مجھے چائے منگوا کر پلائی اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا تمہارا تعلق کسی باقاعدہ گروہ سے ہے؟ مجھے ہنسی آنے لگی، لیکن پولیس والوں کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا، اس ہنسی پر میں اپنے دانتوں سے بھی محروم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا اور صاف لہجے میں کہا، میرا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے جناب، صرف اس عورت کی بے وفائی کا شکار ہو کر یہ جرم کر بیٹھا ہوں جسے میرے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ بے وفائی؟
لیکن اس کے دوست اختر بیگ نے تو تمہیں اس کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ زرپرست عورت ہے۔ میں نے اس کا منہ دولت سے بھر دیا تو وہ میری ہو گئی۔ لیکن مسٹر عارف، تم نے سیٹھ حشمت کی فرم سے جو رقم حاصل کی تھی وہ تو دستیاب ہو گئی۔ مزید دولت حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا 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 تھا؟ اتنی دولت تمہیں کہاں سے مل گئی کہ زرینہ اختر بیگ کو چھوڑ کر تمہاری ہو گئی؟ بڑا ٹیڑھا سوال تھا۔ تالوت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اس سوال کا جواب بھی دینا تھا۔ چنانچہ میں نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک نواب زادہ ہوں۔ اس سلسلے میں اسے یقین دلانے کے لیے مجھے اداکاری کرنی پڑی تھی۔ میں نے اسے اپنی ریاست میں لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ میری گرفتاری کے بعد اس نے پولیس کو بتایا تھا کہ میں ایک نواب زادہ ہوں۔ ڈی ایس پی نے گردن ہلائی۔ شاید زرینہ نے بھی اسے یہی بتایا تھا۔ وہ شخص کون تھا جو تمہارا ہم شکل تھا؟ میں اسے نہیں جانتا۔ بہرحال مسٹر عارف، حشمت سیٹھ کی فرم سے تم نے جو رقم چرائی تھی وہ تو مل گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی تم نے ایک جرم کیا ہے، یعنی تم ایک مرتبہ لاک اپ سے فرار ہوئے اور دوسری دفعہ پولیس کو دھوکہ دیا۔ اس سلسلے میں جلد ہی تمہارا بیان قلم بند کیا جائے گا۔ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی بے وفائی سے بددل ہو کر میں نے جرم کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اختر بیگ سے اس کی شادی نہ ہو۔ گویا حشمت سیٹھ کی فرم سے رقم چرانے کی ترغیب تمہیں اس نے نہیں دی؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، اسے بند کر دو۔ ڈی ایس پی نے حکم دیا اور ایک بار پھر مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ لاک اپ میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ شام کے کھانے کے بعد میں دیوار سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ میرا ذہن صاف تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ کم از کم میں خود کو چغت تو نہیں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بھی زرینہ کا لطف اٹھا لیا تھا اور اسے بے عزت کر دیا تھا۔ اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئی تھی۔ پولیس سے بچ بھی جائے تو اب زندگی کس طرح گزارے گی؟ اور اتنی دیر کے بعد پہلی بار مجھے تالوت کا خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ میرے نکلنے کا تو راستہ موجود ہے۔ میرا پراسرار دوست ضرور میری مدد کرے گا، یقیناً۔ اور میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بے اختیار میں نے پکارا، تالوت، تالوت حاضر ہے میرے دوست۔ میرے کان کے نزدیک آواز سنائی دی اور میں نے چونک کر اپنی بائیں طرف دیکھا۔ تالوت بھی میرے جیسے انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا۔ تالوت بھی مسکرا رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ ارے کافی گر جائے گی۔ تالوت نے جلدی سے تھرمس ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا، کافی؟ ہاں، میں تو کھانے پینے کا سامان بھی لایا تھا، مگر تم نے انتظار بھی نہیں کیا۔ ونڈرفل میرے دوست، ونڈرفل، میں اسے بھینجتے ہوئے بولا۔ تم اس دوران کہاں تھے؟ تمہارے ساتھ ہی تھا۔ یہ بیچاری بھی کیا یاد کریں گے کہ تمہیں کئی گھنٹے بند رکھا۔ لو کافی پیو، پھر یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نے تھرمس کھول کر کافی انڈیلتے ہوئے کہا اور میں نے کافی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم نے زرینہ کو دیکھا؟ ہاں یار، ترس آ رہا تھا اس پر، لیکن بہرحال تمہاری دشمنی ہے، اس لیے میری بھی دشمنی ہے۔ یہ لو۔ اس نے ایک پوٹلی میری گود میں ڈال دی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چونک کر پوٹلی کو ٹٹولا۔ وہ زیورات جو تم نے اسے دیے تھے، اگر یہ اس کے پاس رہ جاتے تو بہرحال سودا اسے مہنگا نہ پڑتا۔ ہزاروں روپے کے زیورات ہیں۔ وہ سوچتی کہ ان 2 راتوں کی قیمت اور اختر بیگ سے لڑائی اسے مہنگی نہ پڑی، تالوت نے کہا اور میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ تم بھی بڑے شیطان ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ برا تو نہیں کیا میں نے، تم کہو تو واپس کر رہا ہوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر ہمارا انتقام کیسے پورا ہوگا؟ لیکن اب یہاں سے نکلنے کا مسئلہ ہے۔ پھر وہی، تالوت نے غصیلے انداز میں کہا اور میں ہنسنے لگا۔ بلا شبہ میں نے اس تمام عرصے میں تالوت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے دوست کے لیے تو لاک اپ وغیرہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ میرا جرم اور سنگین ہو جاتا، لیکن اب اس کی کیا پرواہ کی جا سکتی تھی۔ کافی ختم کرنے کے بعد میں نے تھرمس کا گلاس تالوت کو واپس کر دیا اور اس نے تھرمس ایک طرف رکھ دیا۔ چلیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں چلو، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔ اس آسانی سے وہاں سے نکل جانا مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ تالوت کھڑا ہو گیا۔ زیورات کی پوٹلی زمین پر پڑی تھی۔ اسے بھی اٹھا لو، کسی ضرورت مند کو دے دیں گے، اس نے کہا اور میں پوٹلی اٹھانے کے لیے جھکا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ تالوت میرے سامنے کھڑا تھا۔ آؤ، میں نے کہا اور تالوت مسکرانے لگا۔ کہاں چلیں؟ پہلے یہاں سے باہر۔ جملہ میرے ہونٹوں پر ادھورا رہ گیا۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ یہ لاک اپ نہیں ہے۔ کھلی ہوا جسم کو لگ رہی تھی۔ ارے، میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے شدید حیرت سے کہا، کیا ہم نکل آئے؟ اور کوئی حکم میرے دوست؟ تالوت نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو احساس ہی نہ ہو سکا۔ اگر تمہیں احساس ہو جاتا تو پھر میری پراسرار قوتیں خاک میں مل جاتی۔ بہرحال چھوڑو ان کو، شاید یہ کوئی پارک ہے اور یہ ہواؤں کے ساتھ آنے والی خوشبوئیں۔ آؤ ہم پھولوں کے کسی کنج میں بیٹھ کر ان معطر ہواؤں سے لطف اندوز ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پارک کی طرف چل پڑا۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ زرینہ کو سخت سزا مل گئی تھی اور میرا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ تالوت میرا دوست، میرے تصورات سے زیادہ پراسرار ہے،
लेकिन क्या वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा? क्या उसका साथ छूटने के बाद मेरी जिंदगी का कोई मसरफ रहेगा? अरे भाई, क्या सोच रहे हो? तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा और मैंने खलूस दिल के साथ अपने ख्यालात का इजहार तालूत से कर दिया। तालूत गुस्सीले अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगा था। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम अपनी दुनिया के इंसानों के अंदाज में सोच रहे हो दोस्त। हम तुमसे खासे मुख्तलिफ होते हैं। हमारी दुश्मनी और दोस्ती पायदार होती है। मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। मरने लगूं तो अपनी कौम के किसी फर्द को वसीयत कर जाऊंगा कि वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारे साथ मेरे लम्हात दिलकश गुजर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी दोस्ती को जिंदगी के किसी हिस्से में फरामोश नहीं करूंगा, लेकिन मेरे इस वादे के साथ तुम्हें भी एक वादा करना होगा। क्या? मैंने खुशी से पूछा। गो मैं आतिशी हूं, इसके बावजूद गलतियों से मुबर्रा नहीं हूं। मुझसे तुम्हारी दिल शिकनी भी हो सकती है। ऐसे मौकों पर तुम एक मेहरबान दोस्त की तरह मेरी गलती को नजरअंदाज कर दोगे। मैं वादा करता हूं कि ऐसा ही करूंगा। तुम्हें एक और वादा भी करना पड़ेगा। वो क्या? इस वक्त के बाद जहन से हर तशवीश, हर खौफ निकाल दो। मैं तुम्हें कभी उदास ना देखूं। ठीक है, ये भी मंजूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खुश रहो और जिंदगी का हर लुत्फ इंसानियत के दायरे में रहकर हासिल करो, ताकि जब मौत आए तो खुशी से जान दे दो। ठीक है तालूत, आज के बाद से तरद्दुद खत्म, मैंने कहा और तालूत ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। अब आइंदा प्रोग्राम पर गौर करो। इस देश की फिजाएं मुझे रास नहीं आई तालूत। यहाँ से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। इस मुल्क से मेरा जी भर गया है। क्यों ना यहाँ से कहीं और चला जाए? तालूत ने मेरा फिक्रा उचक लिया। हाँ, मैं यही कह रहा था, मैंने कहा। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है? एक बात बताओ, मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। जरूर पूछो मेरी जान, उसने मुसरत से झूमते हुए कहा। किसी ख्याल के तहत उसकी आंखें मुसरत से चमक रही थीं। जिस तरह तुम जश्न जदन में कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, जिस तरह तुम मुझे लॉकअप से यहाँ निकाल लाए हो, उसी तरह क्या हम दूसरे ममालिक में भी पहुंच सकते हैं? यकीनन। हमारे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इस तरह मजा नहीं आएगा। मैं उस सफर की तफसीलात नहीं जान सकूंगा जो तुम दूसरे मुल्कों के लिए किया करते हो। तब फिर मेरी एक तजवीज़ है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्यों ना तुम भी कोई इंसानी शक्ल इख्तियार कर लो और एक इंसान की हैसियत से मेरे साथ रहो। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी अपनी हैसियत तो बरकरार रहेगी, जाहिर है। तब ठीक है, इसी वक्त ये काम करो। चेहरा तुमसे मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल। तब देखो, ये ठीक है। तालूत ने अपने चेहरे पर हाथ रखकर हटाया और एक अजीब सी शक्ल का नौजवान मेरे सामने आ गया। नहीं, तुम्हारी नाक बहुत लंबी है, मैंने कहा। तब फिर नाक बदल लेता हूँ। उसने चुटकी से नाक उखाड़ ली और जेब से दूसरी नाक निकाल कर लगा ली। नहीं, बात नहीं बनी, मैंने किसी किस्म की हैरत का इजहार किए बगैर कहा। माफूकुल फितरत तालूत की बातों पर हैरत का इजहार करना मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तब ये चेहरा कैसा है? उसने दोबारा चेहरे पर हाथ रखकर हटाए। ये भी ठीक नहीं, मैंने कहा। तब फिर तुम अपनी पसंद बताओ। सुनहरे बाल, घुंघराले, मैंने कहा और उसने अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरा। उसके बाल सुनहरे और दिलकश हो गए थे, दूध की तरह सफेद रंग। मैंने उसे फिर हदायत दी और उसने हाथ चेहरे पर रखकर हटा लिए थे। अब बगैर खदोखाल का एक चेहरा मेरे सामने था जिस पर सुनहरे घुंघराले बाल लहरा रहे थे। आगे बोलो, तालूत की आवाज सुनाई दी। रोशन आंखें, बड़ी बड़ी बादामी डिजाइन की, जिनकी पुतलियों में नीलाहट हो, और चेहरे पर दो हसीन आंखें जगमगाने लगी। सतवां नाक, खूबसूरत होंठ, बैजवी ठोड़ी, भरे भरे गाल। मैं बोलता गया और चंद लम्हात के बाद एक वजीह नौजवान मेरे सामने खड़ा था, एक खूबसूरत आइडियल। मैं उसे मुकम्मल हो जाने के बाद देखता रह गया और फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, अब तुम जच रहे हो। अब क्या करूं? किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, वो फराहम कर दो। मसलन, उसने पूछा, पासपोर्ट, वीजा और कुछ सामान। रासिम को समझा दो, वो इन मामलात में मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार है, तालूत ने कहा और फिर गर्दन टेढ़ी करके आवाज दी। रासिम, हाजिर हूँ शहजादा हजूर। मेरा दोस्त जो कुछ कहे वो मुहैया करना है, उसने कहा और मैं उस पुरस्रार गुलाम को तमाम चीजों के बारे में बताने लगा। रासिम के चेहरे पर भी उलझन के आसार थे। सब कुछ सुनने के बाद वो बोला, मैं ये तमाम चीजें मुहैया कर दूंगा आका, लेकिन मैं इनसे वाकिफ नहीं हूँ। चुनाचे मैं इन्हें उन्हीं लोगों से हासिल करूंगा जो ये सब तख्लीक करते हैं। क्या मुझे कल तक की मोहलत मिल सकेगी? हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं है, मैंने कहा। कल मैं ये तमाम चीजें पेश कर दूंगा, रासिम ने कहा और फिर सलाम करके रुखसत हो गया। तालूत मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चमकदार सफेद दांतों से रोशनी फूट रही थी और मैं उसे पसंदीदा निगाहों से देख रहा था। गैर मुल्की लड़कियों का तो बेड़ा गर्क हो गया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? वह चौंक कर बोला।
अरे तुम इस कदर वजीह हो शकील हो कि जो लड़की देखेगी दिल थाम कर रह जाएगी। ये वजाहत भी तुम्हारी दी हुई है, तुम ही जिम्मेदार होगे। तालुत भी मुस्कुराते हुए बोला, फिर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, क्यों ना रात किसी बंद कमरे के बजाय खुले आसमान के नीचे गुजारी जाए। हाँ, यूं भी बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, अब कहाँ जाएंगे? कल पूरे शहर में पुलिस मुझे तलाश करेगी। उसकी फिक्र मत करो, रासिम ज़रूरत की चीज़ें ले आए तो हम ये मुल्क छोड़ देंगे। सफ़र के बारे में क्या ख्याल है? मैंने पूछा। मैं नहीं समझा। हवाई जहाज़ तुमने फिजा में उड़ते देखे होंगे। दूसरे समुद्री जहाज़ भी होते हैं जो समुद्र के सीने पर सफ़र करते हैं। उससे सफ़र तवील होता है लेकिन खासा पुरलुत्फ, जबकि हवाई सफ़र मुख्तसर होता है। तब फिर समुद्री सफ़र उम्दा रहेगा। हवाओं के दोष पर तो मैंने बहुत वक्त गुजारा है, तालूत ने कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। फिर पूरी रात हमने बातों में गुजार दी। तालूत समुद्री सफ़र की तफसीलात मुझसे मालूम कर रहा था। उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब एक इंसान की हैसियत से उसकी भी वही शख्सियत होगी और वह इंसानों के से अंदाज अपनाएगा। सुबह होने पर हम पार्क से निकल आए और सड़क पर चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ने लगे। गो रात जाकर गुजारी थी, लेकिन एक तो खुशगवारो खुश आइंद ख्यालात, ऊपर से ठंडी हवा के फरहत बख्श झोंके, जहन को एक अजीब सी ताजगी का एहसास हो रहा था। हम चलते रहे और फिर एक रेस्तोरां के करीब से गुजरते हुए भुने हुए गोश्त की इश्तहाअंगेज खुशबू नाक से टकराई तो भूख का एहसास हुआ। हम दोनों के कदम एक साथ रुक गए। क्या ख्याल है, नाश्ता कर लिया जाए? तालूत ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। हम रेस्तोरां में दाखिल हो गए। वॉश बेसन पर जाकर हमने मुंह धोए और फिर चेहरे तौलिए से खुश्क करके मेज पर आ बैठे। रेस्तोरां के सबसे पहले गाहक हम ही थे। भुने हुए मुर्ग और तंदूरी पराठे सामने आ गए और खाने का लुत्फ ही आ गया। नाश्ता करने के बाद तालूत ने बिल अदा किया और फिर हम बाहर निकल आए। अब सिर्फ रासिम का इंतजार था, लेकिन ना जाने उसे कितनी देर लगे। ना जाने रासिम पासपोर्ट वगैरह किस अंदाज से हासिल करेगा, मैं सोच रहा था। बहरहाल ये बात तालूत से पूछने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। क्यों ना बंदरगाह की सैर की जाए, ये भी मालूम कर लेंगे कि कौन सा जहाज़ कब और कहाँ जा रहा है। मैंने तजवीज़ पेश की। तो इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, तालूत ने जवाब दिया और मैं गुजरती हुई टैक्सी को रोकने लगा। टैक्सी हमारे करीब पहुंच गई और मैंने ड्राइवर से बंदरगाह चलने के लिए कहा। शायद तुम्हारे पास करेंसी ख़त्म हो गई है। टैक्सी में तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। हाँ, लॉकअप में दाखिल करते वक्त पुलिस ने मेरी तलाशी ली थी और सब कुछ धर दिया था। तब ये रख लो। उसने छोटे नोटों की 2 गड्डियां मेरी जेब में ठूंस दी और मैं गहरी सांस लेकर सड़क पर देखने लगा। रोजमर्रा के काम शुरू हो चुके थे, हर शख्स अपनी धुन में मगन था। हम बंदरगाह के इलाके में पहुंच गए और फिर टैक्सी को बिल अदा करके अंदर दाखिल हो गए। मैं तालूत को लेकर उस इलाके की तरफ चल दिया जहां से जहाज़ों का नज़ारा किया जाता था। तालूत बड़ी दिलचस्पी से देव पैकर जहाज़ों को देख रहा था। तुम्हारी दुनिया में ज़िंदगी गुजारना सख्त मुश्किल है। यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी को खिराज है। मेहनत में अजमत है और तुम लोग वाकई बहुत मेहनत करते हो। जिद्दोजहद इंसान को मसरूफ़ रखती है और दिन के लम्हात आसानी से गुजर जाते हैं। इसके बरक्स हमारे मसाइल महदूद हैं, हमें सब कुछ आसानी से मुहैया हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ की ज़िंदगी पर जमूद तारी है। दुरुस्त है, लेकिन इंसान किसी तौर खुश नहीं है। खुश होना चाहिए, उसे बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। समुंदर के सीने पर चलने वाले ये जहाज़, अगर इंसान को समुंदर पर चलने की कुव्वत हासिल होती तो वो जहाज़ क्यों बनाता। लेकिन देखो कैसे खूबसूरत जहाज़ बनाए गए हैं। आओ इनमें से किसी जहाज़ को अंदर से देखें। इस तरह इजाज़त नहीं मिलेगी। इजाज़त की ज़रूरत ही क्या है, तालूत ने कहा और मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। और फिर जब उसका हाथ हटा तो हम एक खूबसूरत जहाज़ के अर्शे पर खड़े थे। मैंने गहरी सांस ली और फिर तालूत के साथ जहाज़ की सैर करने लगा। उस वक्त हम लोगों की निगाहों के सामने थे और मैं सोच रहा था कि किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती ही थी कि किसी ने खास तौर से हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। जहाज़ के खुलासी अपने कामों में मसरूफ़ थे। उन्होंने सोचा कि हम कोई हैसियत ही रखते होंगे जो जहाज़ पर पहुंच गए हैं। हमने जहाज़ के आरामदेह कैबिन देखे और तालूत ने इस पूरे माहौल को बेहद पसंद किया। हम इसी जहाज़ से सफ़र करेंगे, उसने कहा। तब आओ शेड्यूल में देखते हैं कि ये जहाज़ कब रवाना होगा। कहाँ, वापस खुश्की पर चलें, तालूत ने पूछा। जाहिर है, बस तो फिर आंखें बंद करो, वो बोला और मैंने आंखें बंद कर ली। जिस्म को ज़रा से झटके या टांगों को हल्की सी जुम्बिश का एहसास भी नहीं हुआ और आंखें खोली तो उसी जगह मौजूद थे जहां से जहाज़ पर गए थे। बहरहाल मुझे अब इस बात पर हैरत नहीं होती थी। मेरा दोस्त अनोखी कुव्वतों का शहंशाह था, उसके लिए सब कुछ मुमकिन था। हम उस इलाके की तरफ बढ़ गए जहाँ चार्ट में जहाज़ों की आमद और रवानगी की तफसीलात दर्ज थीं। जिस जहाज़ पर हम गए थे उसका नाम SB पीसा था। फ्रांसीसी तजारती कंपनी का जहाज़ था। मेरी निगाहों में फ्रांस की कहानियां घूम गईं। हसीन और जिंदा दिल लोगों का हसीन मुल्क।
जिसे मैंने अंग्रेजी फिल्मों में देखा था या उसके बारे में किताबों में पढ़ा था। खुद मेरी कभी इतनी इस्तात नहीं थी कि इस मुल्क की सैर के बारे में सोच भी सकूं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था जैसे इस जहाज से सफ़र मेरे लिए नामुमकिन ना हो। पेरिस की हसीन सड़कें मेरे कदमों से दूर ना हो। मैंने तालूत का हाथ पकड़ लिया। हम फ्रांस चलेंगे तालूत? क्या मतलब? तालूत ने हैरत से पूछा। इस जहाज से सफ़र नहीं करोगे? इसी से करेंगे। ये फ्रांस जा रहा है। ओह, किसी शहर का नाम है? नहीं, मुल्क का। क्या बहुत खूबसूरत मुल्क है, देखने के काबिल। तो फिर चलो ना। ऐसे नहीं मेरे मासूम दोस्त, पासपोर्ट आ जाने दो। कल का दिन भी हमें यहीं गुजारना है। ये जहाज़ परसों जाएगा और इस दौरान फ्रांस का वीज़ा वगैरह भी हासिल करना होगा। रासिम सब काम कर लेगा। लेकिन क्या हम इस जहाज़ को आज जाने पर मजबूर नहीं कर सकते? तालूत ने कहा। 2 दिन इंतज़ार कर लो, उसके बाद हम इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करेंगे। तब फिर ये 2 दिन कहाँ गुजारोगे? किसी खूबसूरत से होटल में, मैंने जवाब दिया। ठीक है। तालूत ने रजामंदी का इजहार किया और थोड़ी देर के बाद हम एक टैक्सी लेकर वापस चल पड़े। इस बार भी हमने खूबसूरत से होटल का इंतखाब किया था। होटल में हम शहंशाहों के से अंदाज में दाखिल हुए। वो हमारे साथ कोई सामान नहीं था, लेकिन बैरों को हमने इतना टिप दिया कि हम बेताज शहंशाह माने जाने लगे। बैरे हमारी खिदमत में मसरूफ़ हो गए। मैंने अपने कमरे से मुल्हिका बाथरूम में गुस्ल किया और फिर आरामदेह मसहरी पर आ बैठा। तालूत गुस्ल खाने में चला गया था। मसहरी पर लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं दोपहर के 2 बजे तक सोता रहा। फिर जब मेरी आंख खुली तो तालूत एक कुर्सी पर नीम दराज कुछ सोच रहा था। तुम नहीं सोए? मैंने उससे पूछा। ज़रूरत ही नहीं महसूस की, मगर भूख शिद्दत से लग रही है। ओह, तुमने खाना खा लिया होता? मैंने जल्दी से उठते हुए कहा। घंटी बजाकर बेरे को बुलाया, खाने का ऑर्डर दिया और बाथरूम में चला गया। फिर जब वापस आए तो तालूत खाने की मेज़ पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। खाने के दौरान उसने बताया कि रासिम कागजात वगैरह दे गया है। कहाँ है? मैंने पूछा और उसने एक तरफ इशारा कर दिया। खाने के बाद मैंने कागजात देखे और हैरत से उछल पड़ा। अरे, इसमें तो बैनुल अक़वामी वीज़ा भी मौजूद है। मैंने बाद में रासिम को हदायत कर दी थी। कोई ऐसा काम भी है तालूत जो तुम ना करा सको? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत से ऐसे काम हैं जो मेरे बस से बाहर हैं, तालूत ने लापरवाही से कहा और मैं कुछ सोचने लगा। बस तो आज इस जहाज़ के टिकट हासिल कर लिए जाएं। टिकट क्या होते हैं? रकम अदा करके कैबिन बुक कराई जाती हैं, जैसे हमने होटल में कमरा लिया है। तब फिर तैयारी करो, ऐसा ना हो कि ये काम रह जाए, तालूत ने कहा और मैं बाल वगैरह दुरुस्त करने लगा। फिर हम नीचे उतर आए। एक टैक्सी करके हम शिपिंग कंपनी के दफ्तर रवाना हो गए। मैंने दफ्तर में बुकिंग मैनेजर से मुलाकात की और हमें फर्स्ट क्लास कैबिन बुक कराने में कोई दिक्कत पेश न आई। दौलत से क्या नहीं हो सकता। शाम हो चुकी थी। हम बाजार में निकल आए। सफ़र के लिए ज़ोरदार खरीदारी करनी थी और फिर एक भरे बाजार के फुटपाथ पर शाम के अखबारात में मैंने अपनी तस्वीर देखी जो पहले सफ़े पर शाया हुई थी। मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। तालूत, मैंने तालूत का शाना दबाया। वो चौंक पड़ा। उधर देखो। मैंने फुटपाथ पर अखबारों के ढेर की तरफ इशारा किया और वह चौंक कर मेरी तस्वीर देखने लगा। फिर उसने आगे बढ़कर अखबार उठा लिया और हॉकर को पैसे देकर मेरे करीब आ गया। क्या लिखा है? पढ़ो। खतरनाक मुजरिम एक बार फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लॉकअप से फरार हो गया। बड़ी सुर्खी थी। उसके नीचे आरिफ जमाल की तफसीली खबर थी। पुलिस अफसरों के बयानात थे। आरिफ जमाल को एक खतरनाक मुजरिम करार दिया गया था जो इंतहाई चालाक और पुरस्कार था। पुलिस ने दावा किया था कि वो बहुत जल्द मुजरिम को दोबारा गिरफ्तार कर लेगी और इस बार वो पुलिस को जुल नहीं दे सकेगा। तालूत ये खबर सुनकर मुस्कुराने लगा। मुस्कुरा रहे हो? मेरी जान पर बनी हुई है। काश जहाज आज रात ही रवाना हो सकता। हमाकत, बेवकूफ़ी, तुमने फिर बुज़दिली का मुजाहरा किया। तालूत ने आंखें निकाली। उन्होंने चैलेंज किया है कि इस बार वो पुलिस को जुल देकर नहीं निकल सकेगा। मुमकिन है वो मेरी टांगें ही तोड़ डालें। अरे, फिर हम यहाँ से सीधे पुलिस हेडक्वार्टर चलेंगे। देखता हूँ वो तुम्हारी टांगें कैसे तोड़ेंगे। अरे नहीं मेरे भाई, खुदा के लिए कोई अहमकाना जिद मत करना। बस जल्दी से निकल चलो, अब तो होटल में भी खतरा है। सारे अखबारात ने मेरी तस्वीरें शाया की हैं। मेरे लिए हर तरफ खतरा ही खतरा है। मैंने बदहवासी से कहा। खरीदारी करेंगे, बाजार की एक एक दुकान घूमेंगे, तालूत ने जिद करते हुए कहा। देखता हूँ पुलिस कैसे रोकती है। तालूत मेरे दोस्त, मैंने कहना चाहा, लेकिन तालूत ने मेरे चेहरे पर हाथ रख दिया। मैं बेबसी से उसे देखने लगा। तालूत के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। बस बस जाने दो, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। जरा किसी आईने में अपनी शक्ल देख लो, उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। सामने ही एक पान की दुकान थी। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ और फिर मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं एक बूढ़े की शक्ल में था और खुद अपनी सूरत नहीं पहचान सकता था। अब तो ठीक है। हाँ, मैं एक गहरी सांस लेकर बोला और फिर तालूत के साथ चल पड़ा। लेकिन अखबार की खबर अब भी मेरे दिल में हलचल मचा रही थी। हमने ज़बरदस्त खरीदारी की और फिर होटल वापस चल पड़े।
मेरी नई शक्ल देखकर होटल वाले जरूर चौंकेंगे। अगर किसी ने पूछा तो मैं बहाना कर दूंगा, तालूत ने जवाब दिया। बहरहाल जब तक मैं यहाँ रहूंगा मुझे खतरा दरपेश रहेगा। ना जाने जहाज की रवानगी में इतना वक्त क्यों है, मैंने कहा, और तालूत होंठ सिकोड़कर कुछ बुड़बुड़ाने लगा। थोड़ी देर के बाद हम होटल वापस पहुंच गए। बैरों ने सामान ऊपर ले जाने में मेरी मदद की। तालूत के कहने के बावजूद मैंने डाइनिंग हॉल का रुख नहीं किया। तालूत भी नहीं गया था। दूसरी सुबह मैंने तमाम अखबारात मंगवाए। हर अखबार में मेरी तस्वीर नुमाया थी। पुलिस ने शहरियों से मदद की दरख्वास्त की थी और कहा था कि मुझे जहां भी देखा जाए पुलिस को इतला दी जाए। इसके अलावा शहर की नाकाबंदी कर दी गई थी। बड़े खतरनाक इंतजामात थे। तालूत ने ज़बरदस्ती मुझसे तमाम खबरें सुनी और मुस्कुराता रहा। मुस्कुरा लो, मेरी तरह मुसीबत में गिरफ्तार होते तो पता चलता, मैंने बिलबिला कर कहा। तुम्हारी हर मुसीबत मेरी है दोस्त, बहरहाल फिक्र मत करो। अब तो हम इन दिलचस्प लोगों को खैरबाद कह रही हैं, उसने जवाब दिया। उस रोज़ मैं दिन भर होटल में घुसा रहा। तालूत भी मेरी वजह से कहीं नहीं गया था, लेकिन सरे शाम ही वह मुझसे तकाजा करने लगा कि कोई तफरीह की जाए। मुनासिब नहीं होगा तालूत, मैंने कहा। आखिर क्यों मुनासिब नहीं होगा? अब तो तुम्हारी शक्ल भी बदली हुई है। अरे पुलिस वाले बड़े खतरनाक होते हैं, चाल ढाल से इंसान को पहचान लेते हैं। तुम उनकी कारकर्दगी से वाकिफ नहीं हो और वो मेरी कारकर्दगी से वाकिफ नहीं है। फिर मेरे दोस्त, तुमने ऐसा कोई भयानक जुर्म नहीं किया जिसकी बिना पर वो तुम्हें कत्ल कर दें। बुज़दिली ना दिखाओ, आओ कोई अनोखी तफरीह करेंगे, दिल बहलाएंगे, उसके बाद तो जहाज तक ही महदूद रहेंगे। और फिर उसने मुझे मजबूर कर दिया। नाचार मैंने लिबास तब्दील किया और उसके साथ बाहर निकल आया। गो मेरी सूरत बदली हुई थी, लेकिन किसी भी पुलिस वाले को देखकर मेरी रूह फना हो जाती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चल पड़े। टैक्सी ने एक पुररौनक बाजार में हमें उतार दिया। उस बाजार के अकब में बाजार हुस्न था, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी उस बाजार का रुख भी नहीं किया था। हम दुकानें देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक आदमी कंधे पर रुमाल डाले हमारे नजदीक से गुजरा। चाहिए साहब, उसने तालूत की तरफ झुक कर कहा। क्या? तालूत चौंक कर रुक गया। घर की पली हुई है, दलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाई सुनो, ये क्या कह रहा है? तालूत ने मेरी तरफ रुक करके कहा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैंने उसे शाने से धकेलते हुए कहा और दलाल मायूस होकर आगे बढ़ गया। क्या मामला था, मुझे बताओ। अरे छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं थी, मैंने कहा। मगर वो घर की पली हुई किस चीज की बात कर रहा था? तालूत जिद करने लगा। मजबूरन मुझे उसे तवाइफों के कारोबार के बारे में बताना पड़ा। मैंने उसे बताया कि बहुत सी तवाइफें सिर्फ गाने बजाने का कारोबार करती हैं और बहुत सी इस्मत फरोशी का। तब फिर तुम मुझे इससे लाइलम क्यों रख रहे थे? तालूत ने शिकायत की। इसीलिए कि तुम जिद ना करने लगो। जिद तो मैं अब भी करूंगा। सुनो, हम इस्मत फरोश औरतों के पास नहीं जाएंगे, लेकिन गाना सुनने में क्या हर्ज है? अरे वो जगह शरीफों के काबिल नहीं है। मैं खुद को शरीफ नहीं समझता, समझे? मैं जरूर वहां चलूंगा। तालूत बुरी तरह अड़ गया। फिर जब उसने कहा, यार तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारी दुनिया देखने आया हूँ, मुझे इस अनोखी दुनिया के एक एक पहलू से रोशनास करा दो। फिर जब तुम मेरी दुनिया में जाओगे तो मैं बिला तकल्लुफ तुम्हें वहां के तमाम अजायबात दिखा दूंगा। तालूत ने इस अंदाज में ये बात कही थी कि मैं फिर इनकार न कर सका और मजबूरन मुझे उस बाजार का रुख करना पड़ा जहां मैं कभी नहीं गया था। हर बाला खाने से हारमोनियम, ढोल और घुंघरों की आवाज आ रही थी। तालूत बेहद खुश नजर आने लगा और फिर जिस पहले जीने की तरफ हमारे कदम उठे हम उस पर चढ़ गए। मैं सख्त उलझन में था, लेकिन तालूत के लिए मुझे सब कुछ करना था। वो बेहद शौकीन मिजाज था और उसे अच्छे बुरे किसी माहौल की कोई परवाह नहीं थी। हम ऊपर पहुंच गए। बहुत बड़े हॉलनुमा कमरे में बुर्राक चांदनी बिछी हुई थी। साजिंदे बैठे साज बजा रहे थे। एक तरफ नायिका बैठी छालियां कुत रही थी। उसके बराबर दो हसीन लड़कियां दो जानू बैठी हुई थीं। कमरे के तीन तरफ तमाशबीन बैठे हुए थे, एक से एक बेहुदा शक्ल, गले में फूलों के हार डाले, गालों में गलोरियां दबाए झूम रहे थे और दरमियान में एक कताला आलम महवे रक्स थी। तालूत की आंखों से मुसरत फूटी पड़ रही थी। मैं झिंपा झिंपा सा था। बहरहाल हम भी एक तरफ बैठ गए। नायिका की निगाहें हमारी तरफ उठीं और वह तजुर्बेकार औरत भांप गई कि हम नए पंछी हैं। तालूत बड़ी दिलचस्पी से रक्स देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ झुक कर कहा, हमारे यहाँ भी रक्स और सुरूर की महफिलें होती हैं, लेकिन कभी कभी किसी जश्न के मौका पर, और उनका माहौल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ सिर्फ दौलत लुटाई जाती है। मैंने कहा, वो किस तरह? तालूत ने पूछा। देखो उस अकल के अंधे को देखो जो नोट हिला रहा है। मैंने तालूत को एक तमाशबीन की तरफ मुतवज्जा किया और तालूत दिलचस्पी से यह मंजर देखने लगा। रक्स करती तवाइफ आहिस्ता आहिस्ता तमाशबीन के सामने पहुंच गई और फिर वो दो जानू बैठ गई। उसने उस गीत के कुछ बोल तमाशबीन को मुखातिब करके गाए और नोट वसूल करके आगे बढ़ गई। मैं भी दूं? तालूत ने सरगोशी की।
आए हो तो देना ही होंगे, मगर अभी रुको, मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा। उसी वक्त नायिका के नज़दीक बैठी हुई एक लड़की पानों की एक थाली हाथ में लिए हमारी तरफ आई। ये लड़की भी काफ़ी हसीन थी। वो अदब से हमारे सामने बैठ गई और फिर तालूत के सामने पान पेश किया। क्या करूं, तालूत ने मेरे कोहनी मारी। खा लो, जब यहाँ आए हो तो हर चीज़ से लुत्फ अंदोज हो लो। और तालूत ने थाली से तमाम पान उठा लिए। इससे कबल कि मैं उसे रोकूं, उसने तमाम पान मोड़कर मुंह में ठूंस लिए। लड़की हंस पड़ी। तालूत का मुंह बुरी तरह भर गया था। आपके लिए और लाती हूँ, वो बोली। रुको, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने कहा और जेब से एक 100 का नोट निकालकर थाली में डाल दिया। तवाइफ पर इस नोट का बड़ा असर पड़ा था। और कुछ शौक करेंगे हजूर, उसने पूछा। ओ नहीं नहीं, मैंने घबरा कर कहा। तालूत पानों की मुसीबत में गिरफ्तार था, वरना वो उस शौक के बारे में जरूर पूछता। छाली नहीं खाएंगे हजूर, वो मुस्कुराकर तालूत से बोली। तुम देख रही हो अब छालियों की गुंजाइश कहाँ है, मैंने कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उगालदान लाती हूँ, उसने कहा और उठ गई। तालूत गाल फुलाए बैठा था। पान की सुरख पीक उसके होंठों के गोशों से निकल आई थी और उसके दूधिया चेहरे पर बेहद भली लग रही थी। रक्स करती हुई रकासा की निगाहें बार बार उसके हसीन चेहरे पर आ जाती थीं और फिर गीत का एक मिसरा गाती हुई वो तालूत के सामने आ गई।